everyone. I welcome you all to my official YouTube channel English by प्रीति भारद्वाज। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें सो दैट मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में सब वीडियोस के पीडीएफ्स अवेलेबल हैं, आप वहां से उन्हें डाउनलोड करके अपनी सेल्फ स्टडी के लिए यूज़ कर सकते हैं। और मेरे इंस्टा और ट्विटर हैंडल्स आपकी स्क्रीन के ऊपर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, आप वहां मुझे फॉलो करके डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। In this video, we are going to cover Chapter 2, Nelson Mandela, Long Walk to Freedom of the book First Flight of Class 10th. This chapter is an extract from the autobiography of Nelson Mandela named as Long Walk to Freedom. Nelson Mandela ने अपनी लाइफ के बारे में खुद जो एक बायोग्राफी लिखी है जिसका नाम लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है, ये चैप्टर उसी से लिया गया है। एंड इन दिस चैप्टर अपार्थीड हैज़ बीन टॉक्ड अबाउट। अपार्थीड क्या होता है? इट इज़ अ सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस, कि हम किस जाति से बिलोंग करते हैं या हमारा रंग कैसा है, हम गोरे हैं या काले हैं, उसके बेसिस पे जो लोगों में भेदभाव करता है, डिफ्रेंशिएट करता है, वो अपार्थीड सिस्टम होता है। So this apartheid system was practiced in South Africa for many years. So Nelson Mandela was the one who decided to speak up against it. And it took him more than 30 years to overcome from the system of apartheid. He had to spend 30 years in prison. उनको 30 साल तो जो है वो जेल में बिताने पड़े थे। And finally democratic elections were held in South Africa in 1994. 1994 में वहाँ डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए जिसमें जो पार्टी जीती तो उसमें नेल्सन मंडेला को जो है वो वहाँ का प्रेसिडेंट चूज़ किया गया। एंड द इवेंट्स विच हैव बीन टॉक्ड अबाउट इन दिस चैप्टर आर फ्रॉम 10th May 1994। 10th May 1994 को जो इनॉग्रेशन सेरेमनी थी, यानी जो ओथ टेकिंग सेरेमनी थी, उससे इस चैप्टर की जो है वो बिगनिंग हो रही है। Now before we begin with the chapter, there is an activity given on page number 17. तो उस एक्टिविटी को देख लेते हैं पहले। इसमें दो कॉलम्स गिवन हैं। कॉलम ए में कुछ एक्सप्रेशंस गिवन हैं और कॉलम बी में उनका मीनिंग गिवन है। ओके, एंड दीज एक्सप्रेशंस आर बीइंग यूज्ड इन द चैप्टर। सो चैप्टर को एक बार गो थ्रू करने से पहले इन एक्सप्रेशंस का मीनिंग देख लेते हैं पहले। द फर्स्ट इज अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस। इट्स मीनिंग इन कॉलम बी इज a beautiful coming together of various peoples like the colors in a rainbow। यानी a rainbow gathering of different colors and nations का मतलब है कि जब बहुत सारे कैटेगरीज, बहुत सारे रेसेस के लोग एक साथ आ जाते हैं, जैसे रेनबो में होता है कि रेनबो बहुत सारे कलर से मिलके बना होता है। सेकेंड एक्सप्रेशन इज द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। इट्स मीनिंग इज द सेंटर ऑफ रेशियल सुपीरियॉरिटी। The next expression is be overwhelmed with a sense of history. Its meaning is feel deeply emotional, remembering and understanding all the past events that have led up to the moment. Next expression is resilience that defies the imagination. Its meaning is a great ability, almost unimaginable, to remain unchanged by suffering, not losing hope, goodness or courage. Next expression is a glimmer of humanity. Its meaning is a sign of human feeling, goodness, kindness, pity, justice, etc. The last expression is a twilight existence. Its meaning is a half secret life, like a life lived in the fading light between sunset and darkness. So after the meanings of these expressions, let us move on to the chapter. So in the very initial beginning of the chapter, 10th May of 1994 has been talked about. That was the most important day because that was the inauguration day. Okay, and in that inauguration there was a largest gathering of the people, and those people were the international leaders. Fine. Now, the ceremony took place in the lovely sandstone amphitheatre formed by the Union Buildings in Pretoria. So, this was the place where the ceremony took place. For decades, this had been the seat of white supremacy. यानी ये जो जगह है, यहाँ पर जो सीट है वो white supremacy की सीट थी, यहाँ पर जो रूल था वो white people का रूल था। And now it was the site of a rainbow gathering of different colors। और अब ये वो एक ऐसी साइट बन गई थी जहाँ पर बहुत सारे races, caste
कैटेगरीज कम्युनिटीज़ के लोग जो हैं वो सब एक साथ आ गए थे एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। और बहुत सारी रेसेस और कैटेगरीज के साथ साथ बहुत सारे नेशंस भी एक साथ आए थे साउथ अफ्रीका की सबसे फर्स्ट डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करने के लिए ऑन दैट लवली ऑटम डे। सो दिस मीन्स कि वो जो टाइम है वहाँ उस समय ऑटम का सीजन था। आई वॉज अकम्पनीड, आई जो है वो यहाँ पे नेल्सन मंडेला हैं। आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर जेननी, उनके साथ उनकी डॉटर थी। ऑन द पोडियम यानी स्टेज पे जो ओथ टेकिंग सेरेमनी के लिए जो एक सेटअप प्रिपेयर किया गया था, मिस्टर डी क्लर्क was first sworn in as the second deputy president। तो उनके साथ वहाँ उनकी डॉटर प्रेजेंट थी और पोडियम पे सबसे पहले मिस्टर डी क्लर्क ने जो है अपनी ओथ ली एंड ही टुक द ओथ ऑफ द सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। Now after this, the second oath was taken by Thabo Mbeki. He sworn in as the first deputy president, and then it was the turn of Nelson Mandela to take the oath as the first black president of South Africa. And in his oath, he said, "Today, all of us do by our presence here confer glory and hope to newborn liberty. Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long, must be born a society of which all humanity will be proud." तो extraordinary human disaster अपने जो उन्होंने जो बात बोली उसमें जो थर्ड लाइन के जो वर्ड्स हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिज़ास्टर, इसमें वो उस टाइम को बोल रहे हैं जब उनके ऊपर वाइट सुप्रीमेसी रहती थी। तो उनका कहना है कि ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिज़ास्टर हमने जो एक्सपीरियंस किया है इतने लंबे समय तक, उससे एक ऐसी सोसाइटी बॉर्न होनी चाहिए जिसके ऊपर सारी ह्यूमैनिटी को प्राउड हो। वी हु वर outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil। और कुछ समय पहले ही हम जो हैं आउटलॉज थे, यानी हमारे ऊपर जो अपार्थीड सिस्टम प्रैक्टिस किया जाता था तो हमें कुछ भी राइट्स नहीं मिलते थे, और आज हम वही इंसान हैं कि हम बहुत सारे नेशंस की एक मीटिंग को होस्ट कर रहे हैं। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट। तो वहाँ जितने भी जो गेस्ट आए थे इंटरनेशनल लीडर्स, नेल्सन मंडेला उनको अपनी स्पीच में जो है वो थैंक यू बोलते हैं और वो कहते हैं कि आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस फॉर पीस फॉर ह्यूमन डिग्निटी। और वो कहते हैं कि ये जो हमारी जीत है, हमने जो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो फाइनली इस्टेब्लिश कर ली है, वो सिर्फ साउथ अफ्रीका की जीत नहीं है बल्कि वो एक कॉमन विक्ट्री है, वो सबके लिए एक जीत है, जस्टिस पीस और ह्यूमन डिग्निटी के लिए। वी हैव एट लास्ट हमने एक पॉलिटिकल इमेंसिपेशन को अचीव कर लिया है। इमेंसिपेशन मतलब होता है फ्रीडम। तो वो अब प्लेज करने की बात बोलते हैं कि वी प्लेज ourselves, कि हम खुद से एक प्लेज लेते हैं कि हम सब लोगों को जो है वो लिबरेट कर देंगे। लिबरेट यानी फ्री कर देंगे। किससे फ्री कर देंगे? पॉवर्टी, डेप्रिवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शेल इट बी दैट दिस ब्यूटिफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय द अनदर। वो कहते हैं कि कभी आने वाले समय में कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक इंसान जो है वो दूसरे के ऊपर किसी भी तरीके का जो है वो ऑपरेशन जो है वो उसके साथ करे। द सन शेल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, लेट फ्रीडम रीन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। और वो अपनी स्पीच को लास्ट में जब फिनिश करते हैं तो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर जो रूल है, रीन यानी जो रूल है यहाँ पर, वो केवल फ्रीडम का हो, फ्रीडम राज करे, एंड गॉड ब्लेस अफ्रीका। सो मूविंग अहेड, उसके बाद पेज नंबर 19 पे फर्दर उसी सेरेमनी को डिस्क्राइब किया गया है कि कैसे जो है वो डिफरेंट जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और ट्रूप कैरियर्स जो हैं वो ब्यूटीफुल फॉर्मेशंस में जो हैं वो स्काई में आते हैं और उनसे वो एक ये मैसेज देते हैं कि यहाँ हम सिर्फ अपने मिलिट्री फोर्स को प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये जो न्यू गवर्नमेंट इलेक्ट की गई है फ्रीली और फेयरली, हम इसमें जो है वो प्रॉपर डेमोक्रेटिक तरीके से काम करेंगे। और उसके बाद जैसे हमारे यहाँ 26 जनवरी और 15 अगस्त में होता है कि बहुत सारे परेड्स होती हैं जिनमें हमारे आर्मी और सिपाहीज़ के जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं वो सारे जो हैं वो एक परेड निकालते हैं। ऐसा ही कुछ वहाँ होता है। साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स के जो एम्प्लॉयज़ हैं जिनके चेस्ट जो हैं दे आर बेडेक्ड विद रिबन्स एंड मेडल्स फ्रॉम द डेज गॉन बाय। तो उनके चेस्ट पे जो कि बहुत सुंदर सुंदर रिबन्स और मेडल्स जो उनको मिले हैं वो सजे हुए हैं। वो जो है वो एक सैल्यूट करते हुए जाते हैं नेल्सन मंडेला को।
and I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have been saluted but arrested me. और यहाँ नेल्सन मंडेला पिछले दिनों को याद करते हुए कहते हैं कि कुछ साल पहले ऐसा नहीं होता कि लोग यही लोग मुझे सैल्यूट कर रहे होते, जबकि इन्हीं लोगों ने मुझे अरेस्ट कर लिया होता, बिकॉज दैट वॉज द टाइम ऑफ वाइट सुप्रीमेसी. उसके बाद एक ब्यूटीफुल शेवरॉन की बात की गई है. शेवरॉन जो है वो एक वी शेप में जब कोई पैटर्न बनता है उसे शेवरॉन कहते हैं. तो जेट्स आते हैं बहुत सारे, वो एक वी शेप बनाते हैं और उन जेट्स में से जो है वो अलग अलग कलर का धुआं निकलता है और ये सारे कलर्स जो है वो साउथ अफ्रीकन फ्लैग के कलर्स होते हैं. उसके बाद बताया गया है कि उसी दिन जो है वो वहाँ पर नेशनल एंथम प्ले किया गया, लेकिन एक नेशनल एंथम प्ले नहीं किया गया. इनफैक्ट 2 national anthems were played. So one was the singing Nkosi Sikelel' I Africa, जो कि वाइट्स का नेशनल एंथम था, और सेकंड जो ब्लैक्स का नेशनल एंथम था Dies Them. ओके, ये दोनों ही नेशनल एंथम वहाँ प्रिपेयर किए जो है वो प्ले किए गए. उसके बाद इनाग्रेशन सेरेमनी पे नेल्सन मंडेला कहते हैं कि आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, कि मुझे अपने पिछले दिन याद आते हैं कि कैसे हमारे ऊपर रूल किया गया, अपार्थीड को फॉलो करवाया गया. The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhumane societies of the world has ever known. कि हमारे ऊपर अपार्थीड सिस्टम को फॉलो करवा के जो हमारे ऊपर रूल किया गया वाइट सुप्रीमेसी के थ्रू, उससे जो एक स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट हुआ सोसाइटी में, वो हार्शेस्ट यानी सबसे क्रूर, सबसे बेकार जो है वो सिस्टम था, मोस्ट इनह्यूमन था. उसमें मानवता नहीं थी कहीं पे भी, और वो एक ऐसी सोसाइटी बन गई थी जिसको वर्ल्ड में आज तक कभी किसी ने नहीं देखा था. नाउ मूविंग अहेड टू पेज नंबर 20. तो पेज नंबर 20 पे बताया गया है कि वो जो अपार्थीड का इतना क्रूअल और इतना हार्शेस्ट सिस्टम जो था, दैट हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकग्नाइजेज द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल्स रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन. कि अब इस सिस्टम, जो ये सिस्टम आया है जिसने अपार्थीड को रिप्लेस किया है, ये ऐसा सिस्टम है जहाँ पर हर इंसान के राइट और फ्रीडम को रिकग्नाइज किया जाएगा, चाहे वो किसी भी रेस से बिलोंग क्यों ना करते हों. और ये आज जो ये दिन आया है, दैट हैज़ कम अबाउट through the imaginable, unimaginable sacrifices of thousands of my people यानी black community के जो people थे, उनमें बहुत लोगों ने sacrifices किए हैं, अपनी जान गंवा दी है. लाइक इन इंडिया, जब जैसा कि हम अपने इंडिपेंडेंट कैसे हमें इंडिपेंडेंस मिला, उस जर्नी में हम स्टडी करते हैं कि बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे जिनको जो है वो अपनी जान गंवानी पड़ी थी. तो ऐसा ही कुछ साउथ अफ्रीका में भी हुआ था. आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन सो मेनी अदर डेज दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रोइट्स who had gone before me. The long and noble line ended and now began again with me. तो यहाँ नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मैं वहाँ स्टेज पे खड़ा होकर उस दिन ये सोच रहा था कि मैं सब उन लोगों का एक सम हूँ. वो सब इंसान जो है वो कहीं ना कहीं मेरी आइडेंटिटी में हैं, जिन्होंने इस देश के लिए जो है वो सेक्रीफाइसेस किए हैं, जिन पेट्रॉइट्स ने. और वो उस दिन ये सोचकर बहुत ही बुरा फील करते हैं कि मैं उनको थैंक यू तक नहीं कर पाया, ना ही कभी कर पाऊँगा कि उन्होंने इस देश के लिए जो किया है. एंड पॉलिसी, जो ये अपार्थीड की जो पॉलिसी थी, इसने एक बहुत ही डीप और लास्टिंग वूंड यानी घाव जो है वो क्रिएट कर दिया है सोसाइटी में. और उसके बाद वो कहते हैं कि आने वाले बहुत सालों तक जो है वो हमें ये याद रहेगा, इसे भूलने में हमें बहुत टाइम लगेगा. एंड इसके बाद नीचे जो कुछ आप फोटोग्राफ्स देख सकते हैं पेज नंबर 20 पे, ये सारी जो है वो उन प्रोमिनेंट पेट्रॉइट्स की फ़ोटोग्राफ्स हैं जिन्होंने साउथ अफ्रीकन लैंड पे जो है वो अपनी जान का सेक्रीफाइस दिया है, अपनी जान गंवाई है अपार्थीड सिस्टम के अगेंस्ट. Now moving ahead to page number 21. पेज नंबर 21 पे नेल्सन मंडेला कहते हैं कि माई कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट सॉइल. कि मेरी जो देश की जो मिट्टी है वो बहुत रिच है, मेरा जो देश है वो बहुत अमीर है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे मिनरल्स और जेम्स मिलते हैं. लेकिन उनका कहना है कि जो ग्रेटेस्ट वेल्थ है किसी भी कंट्री के लिए, वो वहाँ के जो हैं वो सिटीजन्स होते हैं, वो पीपल होते हैं, फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स. उसके बाद वो बताते हैं कि इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स, यही वो कॉमरेड्स हैं यानी कंपेनियंस हैं जिन्होंने स्ट्रगल में जो है वो अनइमेजिनेबल अपना करेज दिखाया है, जिसकी वजह से आज हमें फ्रीडम मिला. और वो कहते हैं कि टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मेन एंड वुमेन, मैंने देखा है कि बार बार जो आदमी और औरत हैं वो जो है अपना जान पे रिस्क लेते हैं, अपनी जान दे देते हैं अपने देश के लिए. आई हैव सीन मेन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर्स विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेजिलेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन. मैंने देखा है कि जब कैसे
इंसानों के ऊपर अटैक और टॉर्चर होते थे तो इंसान जो उसके लिए जो आवाज़ उठाते हैं वो एक बिना टूटे हुए आवाज़ उठाते हैं, विदाउट ब्रेकिंग, यानी उनके ऊपर आप कितना भी टॉर्चर कर लो वो फिर भी जो है वो गलत के अगेंस्ट आवाज़ उठाते हैं. आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर. और वहीं से मैंने सीखा कि करेज यानी साहस का मतलब ये नहीं होता कि आपको किसी चीज़ से डर ना लगे, बट ट्रम्प ओवर है. ट्रम्प का मतलब है कि जीतना किसी चीज़ के अगेंस्ट. तो वो कहते हैं कि साहस का मतलब ये नहीं है कि हमें किसी चीज़ से डर ना लगे, बल्कि साहस का मतलब ये है कि हम उस डर पे जीत को पालें. द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही हु डज़ नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर. और ब्रेव इंसान वो नहीं होता जो किसी चीज़ से डरता नहीं है, बल्कि वो होता है जो उस डर के ऊपर जीत पा लेता है. इन द next paragraph he further says that no such man has been born in this society, ऐसा कोई भी इंसान अब तक पैदा नहीं हुआ है सोसाइटी में जो जब पैदा होता है तभी से उसके मन में होता है कि मुझे इस कलर या इस कैटेगरी के लोगों से जो है नफरत करनी है. ऐसा हमें सिखाया जाता है. वी आर टॉट अबाउट दैट. तो इफ़ वी कैन बी टॉट टू हेट, अगर हमें नफरत करनी सिखाई जा सकती है तो देन वी कैन बी टॉट टू लव एज वेल. हमें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है. एंड लव इज़ दैट फीलिंग दैट कम्स मोर नेचुरली टू आवर हार्ट, क्योंकि प्यार वो फीलिंग है जो ज़्यादा नेचुरली हमारे मन में आती है. तो उसके बाद वो कहते हैं कि बहुत ही ग्रिमेस्ट टाइम्स में, यानी बुरे से बुरे समय में भी, जब मैं जेल में था 30 ईयर्स के लिए अपने कॉमरेड्स यानी अपने कंपेनियंस के साथ, हमारे ऊपर जब हर तरीके का टॉर्चर किया जाता था तो वहाँ भी मुझे भले ही कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए दिखाई दे, लेकिन किन्हीं चेहरों पे मुझे जो है वो वहाँ पर ह्यूमैनिटी देखने को मिल जाती थी. ह्यूमैनिटी यानी इंसानियत. भले ही वो उस प्रिजन का गार्ड क्यों ना हो जहाँ हमें बांध के या बंद करके रखा जाता था, तो वो जो एक थोड़ी सी देर के लिए जो ह्यूमैनिटी दिखाई देती थी वही नेल्सन मंडेला की जो है एक गाइडिंग फोर्स थी. एंड वो कहते हैं कि मैन्स गुडनेस इज़ अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड. कि इंसान की जो अच्छाई है वो एक ऐसी चिंगारी है जिसको छुपाया तो जा सकता है लेकिन बुझाया नहीं जा सकता है. और उसके बाद वो फर्दर कहते हैं कि लाइफ में हर इंसान के ट्विन ऑब्लिगेशंस होते हैं, यानी 2 तरह की ड्यूटीज़ होती हैं. पहली ड्यूटी होती है अपनी फैमिली के लिए, जहाँ से उसने सब कुछ सीखा है, उसे सब कुछ मिला है. एंड सेकंड जो ऑब्लिगेशन है वो उसकी कम्युनिटी के लिए होती है. Further on page number 22, Nelson Mandela says that though every man is born with twin obligations, one towards his family and the other towards his community or society, but in the land of South Africa, and that to the community in which Nelson Mandela was born, it was not really possible to fulfill the twin obligations, because as he would go forward to fulfill his obligations towards the society, जैसे ही वो समाज के लिए अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए आगे जाते थे तो उनकी जो जिम्मेदारियां उनकी फैमिली के लिए थी वो उन्हें पूरी नहीं करने दी जाती थी, क्योंकि उनको सज़ा दे दी जाती थी या उनको प्रिजन में भेज दिया जाता था. एंड वहाँ उनका जो एग्जिस्टेंस है वो एक ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस होता था, सीक्रेसी का. क्योंकि ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस का मतलब है कि यू डोंट नो कि आउटसाइड वर्ल्ड में क्या हो रहा है. ठीक है. एंड देन फर्दर ही सेज कि मैं जब पैदा हुआ तो आई वॉज ऑल्सो बॉर्न फ्री. आई वॉज नॉट बॉर्न विद एनी काइंड ऑफ हंगर. मैं किसी भी तरह की भूख के साथ पैदा नहीं हुआ था. आई वॉज ऑल्सो बॉर्न टू फ्री टू रन ओपनली इन द फील्ड्स, टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम एंड टू राइड ऑन द ब्रॉड बैक ऑफ द बुल्स. मैं भी सब चीज़ों के साथ फ्री पैदा हुआ था. It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, कि ये सारे जो freedom हैं ये बिल्कुल illusion थे. And when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, then that I began to hunger for it. और जब मैं बॉयहुड में आया, थोड़ा बड़ा हुआ, मुझे समझ आई कि मेरा फ्रीडम मुझे नहीं दिया जा रहा है, तब मुझे अंदर से उसके लिए भूख पैदा हुई. जब वो स्टूडेंट थे तो उस टाइम पे उन्हें सिर्फ इतना अपने लिए फ्रीडम चाहिए था कि वो जो चाहे वो पढ़ सकें, जब चाहे वो रात को घूम सकें. उन्हें सिर्फ ये फ्रीडम्स चाहिए थे. ठीक है. लेकिन जब वो जोहान्सबर्ग में अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए आए, जब वो एक यंग मैन वाली स्टेज में थे, वहाँ उनको पता चला कि फ्रीडम के बहुत ज़्यादा जो है वो ब्रॉड एस्पेक्ट्स हो सकते हैं. But then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. Prior to this, he used to feel कि सिर्फ मैं ही फ्री नहीं हूँ. लेकिन जब वो फर्दर अपनी हायर स्टडीज़ के लिए यहाँ जोहान्सबर्ग में आए, तब उन्हें पता चला कि उनके जितने भी ब्रदर्स और सिस्टर्स हैं, यानी उनकी कम्युनिटी के जो लोग हैं, उनको फ्रीडम नहीं दिया जा रहा है. I saw that it was not just my freedom that was
curtailed but the freedom of everyone who looked like I did, कि सिर्फ मेरा ही फ्रीडम जो है वो कम नहीं किया गया था, जबकि मेरे जैसे दिखने वाले लोग यानी जितने भी ब्लैक पीपल थे उन सब का फ्रीडम कर्टेल कर दिया गया था। फर्दर नेल्सन मंडेला बताते हैं कि उन्होंने फिर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया जब उनको लगा कि उन्हें इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। तो उनके मन में एक डिज़ायर, एक इच्छा पैदा हुई कि जो फ्रीडम मैं लेना चाहता हूँ वो सिर्फ अपने लिए नहीं लेना चाहता, इनफैक्ट फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइफ्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, कि मैं अपने लोगों के लिए फ्रीडम लेना चाहता हूँ, मेरी कम्युनिटी के जो लोग हैं उनके लिए फ्रीडम लेना चाहता हूँ, ताकि वो भी इज्जत के साथ जो है वो अपनी ज़िंदगी जी सके। और लेकिन ये जो स्ट्रगल था ये उनके लिए बिल्कुल भी इजी नहीं था। इससे हुआ क्या कि वो एक बहुत ही लॉ अबाइडिंग इंसान थे, जो फैमिली को मानने वाले थे, डरते थे हर चीज़ों से। तो उससे क्या हुआ कि वो एक फ्राइटन्ड यंग मैन से एक बोल्ड वन में कन्वर्ट हो गए और एक लॉ अबाइडिंग मैन से वो एक क्रिमिनल में कन्वर्ट हो गए, क्योंकि एट टाइम्स ऐसा भी हुआ कि उन्हें कानून तोड़ना पड़ा। कानून यानी ऐसा कानून जो उनके बीच में रेस के बेसिस पे डिफ्रेंशिएट करता था। एक फैमिली लविंग हस्बैंड से वो एक मैन विदाउट होम में कन्वर्ट हो गए एंड दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क। एक ऐसे इंसान में वो कन्वर्ट हो गए कि जो पहले ज़िंदगी से बहुत प्यार करता था अब वो मॉन्क की तरह जो है वो ज़िंदगी जीने लगा। नाउ after this it has been told that but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. Freedom is indivisible. वो कहते हैं कि freedom तो indivisible है। freedom ऐसा नहीं होता जो लोगों के बीच में किसी तरह का division create करे या उनको बांध के रखे। और उनका कहना है कि अगर किसी पे भी chains डाली जा रही हैं, उनको बांध के रखा जा रहा है, तो वो मेरे ऊपर भी चेंज है। माना अगर आपकी कम्युनिटी के लोगों को बांध के रखा जा रहा है तो कभी ना कभी तो नंबर आपका भी आ सकता है ना। आई न्यू दैट द ऑप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ओप्रेस्ड। यहाँ जो दो वर्ड्स हैं ऑप्रेसर एंड ओप्रेस्ड, ऑप्रेसर इज द वन हु इज प्रैक्टिसिंग ऑप्रेशन, यानी ऑप्रेसर वो इंसान है जो किसी को दबा रहा है और ऑप्रेस्ड वो है जिसको दबाया जा रहा है। तो वो कहते हैं कि सिर्फ ऑप्रेस्ड को ही फ्री नहीं करना है, ऐसे लोगों को ही फ्री नहीं करना जिनको फ्रीडम नहीं दिया जा रहा, बल्कि उन लोगों को भी फ्री करना है जो उनसे फ्रीडम छीन रहे हैं, क्योंकि उनका दिमाग भी तो कहीं ना कहीं जो है वो गलत रास्ते पे चल रहा है ना। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड narrow-mindedness. I am not truly free if I am taking away someone else's freedom, just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. तो लास्ट ये जो लाइन्स हैं, ये जो लास्ट पैराग्राफ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक तरीके से पूरा समराइज करता है चैप्टर को, बिकॉज इसमें नेल्सन मंडेला हमें एक मैसेज दे रहे हैं कि वो ब्लैक पीपल को रिप्रेजेंट ज़रूर कर रहे हैं, उनकी पावर को रिप्रेजेंट ज़रूर कर रहे हैं, बट दैट डज नॉट मीन कि उनका मानना ये है कि सिर्फ जिसको दबाया जा रहा है उसे फ्रीडम दिया जाए। इनफैक्ट जो ऐसी प्रैक्टिस कर रहा है किसी दूसरे के साथ, उसके दिमाग को भी फ्री करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसका दिमाग भी जो है वो गलत रास्ते पे चल रहा है। अब मान लिया अगर मैं किसी का फ्रीडम छीनूंगी तो मैं भी उतनी ही गलत हूँ, मेरे साथ भी, मैं खुद के साथ भी उतना ही गलत कर रही हूँ जितना कि उस इंसान के साथ हो रहा है जिससे फ्रीडम छीना जा रहा है। द ओप्रेस्ड एंड ओप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, क्योंकि इंसानियत तो दोनों से छीनी जा रही है, चाहे वो जो किसी भी तरीके का म्यूटनी, ऑपरेशन या वायलेंस या क्राइम कर रहा है दूसरे के खिलाफ, या वो जिसके साथ वो हो रहा है। सो दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, and this chapter gives us a message that we should not discriminate on any of the basis with any of the people, and it also tells us about political system, apartheid system that was practiced in South Africa. So I hope that your all of the doubts regarding this chapter are clear now, but further if you have any doubt, please feel free to ask in the comment section, and if you have liked the video, hit the like button, share it with your friends in the comment section down below. Let me know which topic to cover next, and subscribe to the channel. Thank you.